Hello everyone, welcome to LRNR classes. So today let's discuss about the topic transcription. Okay, so previous class में we discussed about the topic replication. Okay, replication के बारे में हम discussion किए थे. तो what is replication? जो process में DNA synthesizes its own strand. In the process in which DNA is synthesized from its own strand, that process is called replication. But transcription क्या है? The process of synthesization of RNA from DNA template. Okay, जो process है DNA synthesizes RNA. अगर DNA से DNA synthesize होता है तो वो replication process है, और अगर DNA से RNA synthesize होता है तो वो transcription process है. Okay, so next, when it occurs in the interphase of cell cycle. Okay, so as we know, interphase is the preparatory phase of cell division. Cell division के पहले वाला जो phase होता है जब cell ready होता है divide करने के लिए, वो है आपका interphase. So replication interphase के S phase में occur हुआ था. Okay, so replication occurs in the S phase, synthesis phase में हो रहा था. But transcription occurs same interphase of the cell cycle. Okay, transcription also occurs in the interphase of cell cycle. Then thymine is replaced by uracil in the newly synthesized RNA. Okay, so as we know, जब base pairing होता है in the DNA, what are the base pairings? Adenine pairs with the thymine and guanine pairs with the cytosine. But what is the difference in the RNA base pairing? Adenine pairs with the uracil instead of thymine and guanine same pairs with the cytosine. ये होता है आपका difference in between DNA RNA in the base pairings. So in the RNA, जब यहाँ RNA synthesize होगा, so यहाँ uracil लगने से तो वो strand RNA होगा ना, so इसलिए adenine में जब base pairing होगा, adenine pairs with uracil instead of thymine. Okay, next, the segment which takes part in the transcription is called transcription unit. Okay, तो which segment? DNA से RNA prepare होगा, so DNA के जो भी segment से RNA prepare होगा, suppose this is the DNA, ये होता है आपका coiling DNA strand होता है. So suppose इस पार्ट से अगर RNA सिंथेसाइज हो रहा है, देन दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, जो भी सेगमेंट से, जितने से भी सेगमेंट से अगर RNA सिंथेसाइज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू द RNA. DNA में जो भी कुछ जेनेटिक सीक्वेंसेस है वो RNA को ट्रांसफर हो जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. So transcription unit has three regions. Okay, ये है जो आपका transcription unit, the segment of DNA which takes part in the transcription process, that is the transcription unit. So ये unit में कितने part है? Three regions है. First है promoter region, then elongation region, then termination region. Okay, promoter region, elongation region and terminator region. प्रमोटर रीजन मीन्स जहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. ओके, कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ आपका इनिशिएशन कोडन होगा, वहाँ आपका RNA पॉलीमरेज जो है एंजाइम विच इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम, वो एंजाइम बाइंड करेगा इन द प्रमोटर साइट पे. ओके, RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स आर द प्रमोटर रीजन at which initiation codon lies and initiates the transcription process. And then elongation के टाइम क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यू होगा. In the elongation region, the transcription unit, transcription process continues and RNA synthesizes. जब तक elongation चलता रहेगा तब तक RNA synthesize होता रहेगा, और एक पॉइंट आएगा जहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा, दैट इज द टर्मिनेटर रीजन. दिस इज द ऑल अबाउट योर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एंड ये यूनिट से RNA सिंथेसाइज होगा. सो लेट्स नो व्हाट आर द एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ओके,
सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के लिए द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, द एंजाइम्स आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स. ओके, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज चाहिए. ओके, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, बट यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप्स का आरएनए पॉलीमरेज चाहिए. क्यों? क्योंकि हम आज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट RNA is of 3 types. Okay, rRNA, mRNA and tRNA. Okay, so 3 टाइप्स के आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सो आरएनए पॉलीमरेज 1 synthesizes rRNA, ribosomal RNA, and RNA polymerase 2 synthesizes mRNA or messenger RNA, and RNA polymerase 3 synthesizes tRNA or transfer RNA. Okay, so let's know about the factors which are responsible for transcription process. Okay, जैसे कि हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए, वैसे भी कुछ फैक्टर्स भी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए. सो सिग्मा फैक्टर, फर्स्ट सिग्मा फैक्टर. ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द आरएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट होता है. सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, द इनिशिएशन फैक्टर इज द सिग्मा फैक्टर. ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, and it is the part of RNA polymerase. And what is the role? It recognizes the initiation codon. Which is the initiation codon? AUG. Okay, क्योंकि AUG कहाँ प्रेजेंट होगा? और द प्रमोटर रीजन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो फर्स्ट रीजन है जहाँ से इनिशिएट होगा, दैट इज द प्रमोटर रीजन. एंड कहाँ से इनिशिएट होगा? जहाँ इनिशिएशन कोडन प्रेजेंट होगा. एंड ये कोडन को पहचानने के लिए क्या चाहिए? सिग्मा फैक्टर चाहिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में. ओके, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए अदर इनिशिएशन फैक्टर्स आर देयर, दैट इज द TF2 एंड TF3. means transcription factor 2 and transcription factor 3 are the initiation factors in the eukaryotic cell for initiating the transcription process. Okay, and core enzyme, another factor is the core enzyme. ये क्या होता है? the remaining part of RNA polymerase. ये भी RNA polymerase का भी एक पार्ट है. सिग्मा फैक्टर को छोड़कर, एक्सेप्ट द सिग्मा फैक्टर, बाकी जो पार्ट रहा RNA polymerase का वो है आपका core enzyme. And what is the role of core enzyme? In elongation process. जब चेन elongation process होगा, RNA चेन जब elongation process होगा, जब continuation process होगा, so ये elongation process में the factor required is the core enzyme, which is the part of RNA polymerase also. And the termination factor is the Rho factor. Okay, so translation process को terminate करने के लिए, मतलब स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चाहिए? एक फैक्टर चाहिए. वो फैक्टर है आपका रो फैक्टर, इज द टर्मिनेशन फैक्टर. ओके, एंड ऑल्सो अदर फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अदर प्रोसेसेस लाइक अनवाइंडिंग ऑफ DNA, रीवाइंडिंग ऑफ DNA, सेपरेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA स्ट्रैंड. ओके, बेस पेयरिंग, ये सब जो प्रोसेस होता है, सो सारे प्रोसेसिंग के लिए आप कुछ फैक्टर्स चाहिए होता है. So what are the main factors are there? Initiation factors in case of prokaryotic cell, initiation factor in case of eukaryotic cell, termination factor क्या हो गया, and elongation factor क्या है. Okay, so let's know about mechanism of transcription process. So let's know about the mechanism of transcription process. So what are the mechanisms? So first is the activation of ribonucleotide. Okay, second initiation, third complementary base pairing, then elongation of RNA chain, and last one is the termination. Okay, so पहले इनिशिएट होने के लिए जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, व्हाट इज द राइबोन्यूक्लियोटाइड? द यूनिट ऑफ RNA स्ट्रैंड. जैसे DNA स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, वैसे RNA चेन इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड तो प्रेजेंट है, उसमें राइबो सुगर प्रेजेंट है, इसलिए वो न्यूक्लियोटाइड से राइबोन्यूक्लियोटाइड. सो व्हाट आर द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स? सो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा. सो व्हाट आर द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स? कि न्यूक्लियोटाइड्स आर 4 टाइप्स. ओके, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स? एडेनोसिन, देन गुआनोसिन, देन
थाइमिडीन, ओके, देन साइटिडीन, ये हो गया आपका डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड, एडेनोसिन, गुआनोसिन, ओके, थाइमिडीन एंड साइटिडीन। बट इन केस ऑफ आरएनए ये तो थाइमिडीन तो नहीं होगा क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं है बेस। सो बट इन केस ऑफ आरएनए द न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेनोसिन एक है, ओके, नेक्स्ट गुआनोसिन, थाइमिडीन के बदले क्या है, यूरिडीन है, ओके, यूरिडीन एंड साइटिडीन, ये है आपका 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, क्योंकि थाइमिन प्रेजेंट नहीं है, थाइमिन के बदले क्या प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है। सो यूरासिल में एक फॉस्फेट ग्रुप एंड राइबोस शुगर मिलकर यूरिडीन बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो ये सब जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये सब बेस है प्लस शुगर है प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, ओके। एडेनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है बट एडेनाइन एक बेस है, ओके। एडेनाइन बेस में जब शुगर मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, देन इट इज कॉल्ड एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड, ओके। वैसे भी गुआनाइन बेस में शुगर फॉस्फेट मिलकर गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड हुआ है। थाइमिडीन में थाइमिन बेस शुगर एंड फॉस्फेट मिलकर थाइमिडीन। सो ये सब न्यूक्लियोटाइड्स में बेस शुगर फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। सो राइबोन्यूक्लियोटाइड मीन्स आपका जो क्या है, एडेनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन एंड साइटोसिन, उनका एक्टिवेशन होगा। कैसे? द कन्वर्शन ऑफ मोनोफॉस्फेट्स इनटू ट्राइफॉस्फेट्स। सो ये सब न्यूक्लियोटाइड्स में बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, यहाँ कितना फॉस्फेट ग्रुप लगा है, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है। सो ये सब है आपका मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। सो ये मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट, एक के जगह 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए, सो एक्स्ट्रा 2 फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होगा। एंड दैट conversion occurs by phosphorylation process, okay। phosphorylation process are the presence of phosphorylase enzyme, okay। so ये AMP adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, cytidine monophosphate and uridine monophosphate, यहाँ पे जब फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होगा, ओके, फॉस्फोरिक एसिड जब मिलेगा, देन बाय द catalyzation of phosphorylase enzyme they converted into triphosphates, ATP, GTP, CTP and UTP. Adenosine triphosphate ATP, guanosine triphosphate GTP and cytidine triphosphate that is CTP and uridine triphosphate that is the UTP. Okay, so are the activation of ribonucleotide. How the ribonucleotides are activated? The monophosphates converted into triphosphate, that is the after conversion of triphosphate, then these are the activation state, इससे आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, इनिशिएशन प्रोसेस। एक्टिवेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इनिशिएट होगा। सो वेयर इट इनिशिएट्स, फ्रॉम प्रमोटर रीजन, ओके। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का फर्स्ट रीजन है आपका प्रमोटर रीजन, क्योंकि वहाँ आपका इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो प्रमोटर रीजन में इनिशिएशन स्टार्ट होगा, ओके। नेक्स्ट प्रमोटर रीजन, हाउ प्रमोटर रीजन इज रिकॉग्नाइज्ड, बिकॉज प्रमोटर रीजन इज रिच इन 80 बेसेस, एडेनाइन एंड थाइमिन बेसेस। आज थाइमिन के बाद कहाँ से आ गई, क्योंकि यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो डीएनए स्ट्रैंड से ही होगा। डीएनए स्ट्रैंड मतलब थाइमिन तो प्रेजेंट होगा ना। सो प्रमोटर रीजन इज रिच इन 80 bases, means adenine and thymine bases, okay, are the beginning. So this region is called Tata box. Promoter region also called Tata box. So आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टाटा बॉक्स कहाँ प्रेजेंट है, ओके। टाटा बॉक्स, टाटा मीन्स TA मीन्स थाइमिन एडेनाइन, थाइमिन एडेनाइन, ये बहुत सारे प्रेजेंट होता है इन द प्रमोटर रीजन। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में ये एक है, टाटा बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द प्रमोटर रीजन, ओके। प्रमोटर रीजन में टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है एंड द रिच रीजन इज एक्सट्रीमली रिच इन A and T बेसिस, एडेनाइन एंड थाइमिन बेसिस, ओके। नेक्स्ट जब प्रमोटर रीजन का पहचान हो गई, देन वहाँ क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। प्रमोटर रीजन में RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, वो बाइंडिंग होगा एट द प्रमोटर रीजन, ओके।
देन आफ्टर बाइंडिंग अ प्रमोटर रीजन देन रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन कोडन, क्योंकि प्रमोटर रीजन में ही आपका इनिशिएशन कोडन प्रेजेंट होगा, जहाँ इनिशिएशन कोडन प्रेजेंट होगा वो जगह होगा आपका प्रमोटर रीजन, एंड वहाँ भी 80 रीजन्स प्रेजेंट होंगे. सो व्हाट इज द इनिशिएशन कोडन? AUG. ओके, AUG इज द इनिशिएशन कोडन, एंड वहाँ से आपका जब RNA पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है वो AUG कोडन को क्या करेगा? पहचान करेगा, रिकॉग्निशन करेगा. सो आफ्टर रिकॉग्निशन देन द प्रोसेस इनिशिएट्स, देन प्रोसेस स्टार्ट होगा. ओके, सो इन प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा AUG को, बट इन यूकैरियोट्स में दो फैक्टर्स होता है, ट्रांसक्रिप्शन 2 एंड ट्रांसक्रिप्शन 3, वो रिकॉग्नाइज करेंगे AUG कोडन को. देन आपका इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. देन आपका नेक्स्ट क्या जाएंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, देन क्या होगा? रेप्लिकेशन में भी सेम प्रोसेस हुआ था. ओके, बेस पेयरिंग होने लगा था. सो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? बेस पेयरिंग स्टार्ट होगा. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. So let's start about the complementary base pairing process. Okay, so what is the complementary base pairing process? The activated ribonucleotides. Okay, so पहला स्टेप हमारा क्या था? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन होना, क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ही RNA चेन बनाएंगे, वो DNA के ऊपर लाई करेंगे. And that activated ribonucleotides lie opposite to the nitrogenous bases of DNA template strand. क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होगा? DNA से स्टार्ट होगा. ये DNA है, DNA में राइबोन्यूक्लियोटाइड है क्या? DNA में क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है. राइबोन्यूक्लियोटाइड कहाँ है? RNA में है. सो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ही हमारा RNA चेन बनेगा. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? DNA चेन का अनवाइंडिंग. ओके, DNA चेन का अनवाइंडिंग मतलब यहाँ से DNA का एक फॉर्क क्रिएट होगा, अनवाइंड होगा, जिस जगह आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. ओके, सपोज इतने स्पेस में आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा. सो ये वाला स्पेस क्या होगा? DNA का अनवाइंड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वहाँ क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड का ऑलरेडी एक्टिवेशन हो चुका होगा. ओके, एंड यहाँ आपका प्रमोटर रीजन होगा. ओके, ये वाला आपका जो ये 80 जो रीजन है, ये वाला आपका प्रमोटर रीजन होगा. यहाँ RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा. ओके, DNA टेम्पलेट का ये है आपका DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड, यहाँ आपका RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग होगा, ये है आपका प्रमोटर रीजन. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये सपोज यहाँ आपका T है. सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ T और थाइमिन? दैट इज एडेनाइन. ओके, सो वहाँ आकर उसके अगेंस्ट एडेनाइन आकर बैठेगा. देन सपोज यहाँ एडेनाइन है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होगा? DNA में तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ एडेनाइन इज थाइमिन, लेकिन RNA चेन फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए? थाइमिन के बदले हमें क्या चाहिए? यूरासिल. ओके, सपोज यहाँ C है तो उसके अगेंस्ट बेस आएगा क्या? गुआनाइन. यहाँ G है, यहाँ C आएगा साइटोसिन. यहाँ एडेनाइन है, उसके अगेंस्ट क्या आएगा? यूरासिल, नॉट थाइमिन, क्योंकि RNA चेन फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ थाइमिन के बदले हमारा क्या लगेगा? यूरासिल लगेगा. यहाँ गुआनाइन है, साइटोसिन, यहाँ T के बदले A, T के बदले A. ओके, T के अगेंस्ट C. सो ये सब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब एक्टिवेटेड कंडीशन में है अभी. ओके, सो एक्टिवेटेड कंडीशन मतलब इसे ट्राइफॉस्फेट स्टेज में है. एक्टिवेटेड कंडीशन मतलब यहाँ A जो लगा है, ATP लगा है, UTP लगा है, GTP लगा है, CTP, सब ट्राइफॉस्फेट स्टेज में लगे हुए हैं. So ये activated ribonucleotides lie against the nitrogenous bases of DNA template in which transcription process continues. Okay. So after जब complementary bases जब लग जाएंगे over the DNA template strand, तो extra phosphate radicals, ये extra phosphate radicals कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारा ribonucleotide में only monophosphate stage था, हमारा न्यूक्लियोटाइड में only one phosphate group ही चाहिए. So ये जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल मतलब हमारा एक्टिवेटेड स्टेज में क्या है? ट्राइफॉस्फेट स्टेज है, मतलब दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है हमारे पास. ओके, जो एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में वी हैव 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल्स, बट राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन में हमें एक ही फॉस्फेट ग्रुप चाहिए. सो 2, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद क्या होगा? 2 फॉस्फेट रेडिकल्स क्या होगा? वो रिलीज हो जाएंगे. ओके, द एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स
आर हाइड्रोलाइज्ड बाय फॉस्फेटेज एंजाइम। ओके, हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या होगा, ये जो 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल्स है ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। ओके, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ओके, एंड एएमपी मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो ये है आपका एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड। आफ्टर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इट अगेन कन्वर्टेड इनटू मोनोफॉस्फेट स्टेज, एटीपी कन्वर्टेड इनटू एएमपी, जीटीपी कन्वर्टेड इनटू जीएमपी, ओके, सीटीपी कन्वर्टेड इनटू सीएमपी, यूटीपी कन्वर्टेड इनटू यूएमपी। सो ये है आपका, इन सब को मिलकर आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा। और ये जो 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल्स जो अटैच हुए थे वो रिलीज हो जाएंगे बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, ओके, बाय द कैटालिसिस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। ओके, सो नेक्स्ट कम टू एलोंगेशन प्रोसेस। ये हो गया आपका कंप्लीमेंट्री बेस, सब उसके अगेंस्ट अटैच हो गए। देन एलोंगेशन प्रोसेस मतलब ये ओनली तो आकर बेड ट्रेन से कोई तो आरएनए चेन फॉर्मेशन नहीं होगा ना। सो इनके बीच में क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन होने से ही वो चेन का शेप लेगा। ओके, सो व्हाट इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, इन बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स में सुगार फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड है। सो इसीलिए सुगार फॉस्फेट में कौन सा बॉन्ड है, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, सो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सो ये बॉन्ड अगर फॉर्मेशन हो जाएगा देन एक आरएनए चेन फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, द एलोंगेटर फैक्टर कोर एंजाइम। ओके, द एलोंगेशन फैक्टर कोर एंजाइम जो हम प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो कोर एंजाइम हेल्प्स but in the formation of phosphodiester bond in between 2 adjacent nucleotides। 2 adjacent nucleotides में phosphodiester bond formation करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोर एंजाइम चाहिए। ओके, with the help of energy and magnesium 2+ ion। ओके, and this elongation factor continues till termination region starts। ओके, जहाँ टर्मिनेशन रीजन आ जाएगा तो ये कोर एंजाइम तब तक चलता रहेगा। नेक्स्ट, टर्मिनेशन रीजन आने के बाद कोर एंजाइम के बदले क्या आ जाएगा, रो फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रो फैक्टर आ जाएगा, जो टर्मिनेशन फैक्टर है। सो ये जो एलोंगेशन हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है एट ए स्पीड ऑफ 30 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 30 न्यूक्लियोटाइड्स का एलोंगेशन हो रहा है इन द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, ये नया सिंथेसाइज आरएनए है, ये दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए इज कॉल्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ओके, सो दिस इज द डीएनए टेम्पलेट। ओके, दिस इज द डीएनए टेम्पलेट एंड डीएनए टेम्पलेट के ओवर क्या फॉर्मेशन हुआ है, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। सो ये दोनों को मिलकर हम बोलेंगे आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ओके, द न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA transcript over the DNA template, okay, together called DNA RNA hybrid। इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे DNA RNA hybrid। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट। डीएनए का डायरेक्शन क्या है, 3' to 5'। बट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा जो डीएनए स्ट्रैंड 5' to 3' होगा। The DNA strand which is polarized और द 5' डायरेक्शन टू 3' डायरेक्शन, वो डीएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब ये स्ट्रैंड में आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। ओके, सो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो या रेप्लिकेशन प्रोसेस हो, वो आपका 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द टर्मिनेशन प्रोसेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टर्मिनेशन स्टेप। ओके, तो टर्मिनेशन स्टेप मतलब जहाँ आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टेप खत्म होगा, एंड होगा। सो कहाँ आएगा, द व्हेन इट अकर्स व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेस आर द टर्मिनेशन रीजन। जब आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम जो इनिशिएट करता था, ओके, वो आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू होकर जो एलोंगेशन स्टेप करेगा, देन आपका एक रीजन आएगा जो टर्मिनेशन रीजन, वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा। ओके, देन आपका टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। सो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए,
required rho factor. Okay, rho factor recognizes the terminator region. And terminator region can be recognized by two components, hairpin loop and 4 to 8 adenine bases. Okay, so newly synthesized RNA transcript पे जब एक hairpin loop structure आएगा, so that RNA strand can synthesize base pairing with its own strand. Okay, RNA strand can synthesize base pairing with its own strand. इसलिए hairpin loop चाहिए so that ये खुद के स्ट्रैंड के साथ बेस पेयरिंग कर सके. एंड 4 to 8 एडेनाइन बेसेस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरासिल प्रेजेंट होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, सो दैट इट हेल्प्स फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, सो ये हो गया आपका रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनेटर रीजन. एंड रो फैक्टर का काम क्या है? हेल्प्स टू सेपरेट द आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए चेन है उसे सेपरेट करेगा फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, एंड देन डीएनए डुप्लेक्स मतलब यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन स्टेप हुआ है, यहाँ डीएनए क्या हुआ है? अनवाइंडिंग हुआ है. ओके, ये है डीएनए अनवाइंडिंग हुआ है. सो फिर से डीएनए डुप्लेक्स क्या होगा? रिवाइंड होगा. डीएनए चेन यहाँ ओपन हुआ है, फिर से डीएनए क्या होगा? रिवाइंड होगा. सो रिवाइंड होने के लिए क्या चाहिए? बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए. ओके, सो डीएनए डुप्लेक्स इज रिस्टोर्ड बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड फिर से वो रिवाइंड हो जाएंगे. ओके, एंड टर्मिनेटर रीजन हैज टू कंपोनेंट्स as we have already discussed, that is hairpin loop, okay, in the newly synthesized RNA transcript and 4 to 8 adenine bases following hairpin loop. So this is all about your ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो फर्स्ट स्टेप क्या गया आपका? एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन होगा क्योंकि वो एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर आपका आरएनए चेन फॉर्मेशन होगा. देन योर इनिशिएशन स्टेप जो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा. ओके, एंड देन योर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. ओके, जो डीएनए टेम्पलेट में जो बेसेस होगा उसके अगेंस्ट एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आकर प्रेजेंट होगा, लाई. Okay, the activated ribonucleotides lie against the nitrogenous bases present in the DNA template strand. So activated ribonucleotides के बीच में फिर से क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ओके, वो बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब एलोंगेशन स्टेप. ओके, अ कंटिन्यूअस स्टेप एंड दैट स्टेप इज फॉलोड बाय योर कोर एंजाइम व्हिच एस्टैब्लिश द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन ribonucleotides. ओके, देन लास्ट इज योर टर्मिनेशन रीजन जो आपका हेयरपिन लूप से एंड 4 to 8 एडेनाइन बेस से टर्मिनेट होगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. थैंक यू.